For example, if we are discussing about liquid phase epitaxy, in liquid phase epitaxy, we grow semiconductor crystal layer from melt on solid substrate. For instance, we have a solid substrate and we want to deposit a silicon thin film. Now, what we have to do, we basically make a solution of this silicon in some kind of liquid. This basically, I am trying to make a concept that how this liquid phase epitaxy work. The example I am mentioning here is not necessarily working in real world. So silicon, when silicon is dissolved in this liquid, it make a solution of silicon thin film, and then this solution is dropped. You can drop it through there are few techniques, I am forgetting about the names. For instance, drop casting. You can drop cast these liquid on this substrate, and then what you will do is rotate this substrate, that this liquid is spread all around over the silicon substrate, and the film is deposited. So this kind of technique, this method is known as liquid phase epitaxy, and this happened at temperature well below the melting point of the deposited semiconductor. For instance, this in this way, you didn't melt the silicon, you make a solution of silicon and deposit thin film of silicon without melting the silicon material. And that's why it is very positive aspect of this method, the temperature of this technique is well below the melting point of the deposited semiconductor. The semiconductor is dissolved in the melt of another materials, and at these conditions you have to be very close to equilibrium between dissolution and deposition, the deposition of semiconductor crystal on substrate, and it's very slowly and uniform. The equilibrium condition depend very much on the temperature and concentration of dissolved species in this melt. Moving on, there are few advantages and disadvantages, or you can say limitation of this method, कि इसका जो growth rate है वो बहुत ज़्यादा होता है. They are typically 0.1 to 10 micrometer per hour. तो as compared to molecular beam epitaxy का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है. तो एक घंटे में यहाँ पे आप 10 माइक्रोमीटर की थिक लेयर ऑब्टेन कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोसीजर है. ये वेरी फ्लैट सर्फेसेज एंड एक्सीलेंट स्ट्रक्चर परफेक्शन के लिए जरूरी होता है. ये वाइड सिलेक्शन ऑफ डोपेंट होता है. ग्रोथ कैन बी मेड टू अकर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड absence of toxic precursors or byproduct. In this method, you know that we are basically making a solution and then depositing it. That's why the production of any kind of toxic precursor or byproduct is out of question. लिमिटेशन इसकी ये होती है कि ये जो कंट्रोल ऑफ लेयर थिकनेस होती है या अलाई कंपोजिशन डोपिंग और इंटरफेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दिस प्रोसेस. एंड सेकेंडली it has very poor reproducibility. You cannot produce the same result or same procedure by performing or by controlling, as you cannot control the parameters, different parameters in this technique. That's why reproduction of the results is very uncommon. और इसके अलावा ये है कि स्केलिंग अप इन साइज और थ्रूपुट, यू कैन, अगर आप इसका प्रोडक्शन रेट हाई करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है. वेपर फेज एपिटेक्सी, जिसे आप ALD भी कहते हैं, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन होती है. इसमें आप ये करते हैं कि आप सीक्वेंशियल यूज ऑफ गैस फेज केमिकल प्रोसेस होता है, और इसमें ये केमिकल वेपर डिपोजिशन की एक सब क्लास समझी जाती है. इसमें बुनियादी तौर पर 2 केमिकल्स होते हैं, उनको आप वेपराइज करते हैं और इनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. ये जो केमिकल्स प्रिकर्सर जिनको आप वेपराइज करते हैं, ये सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट के ऊपर आते हैं. यहाँ सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर आपस में रिएक्ट करते हैं एक लिमिटिंग मैनर से, और उसके नतीजे में रिक्वायर्ड फिल्म जो होती है वो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. आगे अगर हम चलें तो जाहिर है इसके भी फायदे नुकसान हैं. जो VPE है, वेपर फेज एपिटेक्सी है, ये बहुत कंट्रोल्ड होती है. वहां पे लिक्विड फेज में मैंने आपको बताया था कि वो अनकंट्रोल्ड है. यू कैन नॉट कंट्रोल डिफरेंट पैरामीटर्स इन दैट. कंट्रोलिंग समराजी है कि आप उसका ग्रोथ रेट, आप उसकी रफनेस, आप उसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ये बहुत, लेकिन ये सेंसिटिविटी और प्रेसिजन की इक्विपमेंट की वजह से इसका ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के स्मॉल प्रोडक्ट्स या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये बहुत मुफीद जानी जाती है. एटॉमिक लेयर डेपोजिशन या वेपर फेज डेपोजिशन ज़्यादा अच्छा नाम है. अब लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, चूंकि इसमें जो सबस्ट्रेट की प्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हाईली प्योर हो, और हाईली प्योर सबस्ट्रेट लेने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इस वजह से ये कॉस्टली हो जाएगा. और इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वंस द लेयर हैज बीन मेड एंड द प्रोसेस इज कंप्लीट, there may be a requirement of needing to remove excess precursor from the final product, and for that you have to go for annealing process or some kind of vaporization process. तो जब ये हो जाता है, ज़ाहिर है वेपर बन गए हैं,
तो उनको आपने रिमूव भी करना है। आपकी फिल्म बन गई है, उसके बाद आपने उसमें से मटेरियल को रिमूव करना है। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज यूटिलाइज नो डेज एंड मोस्ट एडवांस मोस्ट मॉडर्न टेक्निक फॉर एपिटैक्सियल ग्रोथ इज मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। इसके करने के लिए ये आपको पता होगा कि जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और मोस्ट एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप थिन फिल्म बनाते हैं अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन में, कि जिसके अंदर इम्प्योरिटी का, जिसके अंदर डिफेक्ट्स के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। आप एक सिंगल क्रिस्टल भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक एमबी मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी को यूज करते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द बेस मटेरियल कॉल्ड सबस्ट्रेट। उस सबस्ट्रेट को सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मेनियम का हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है। आप सबसे पहले इस सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये आपने सबस्ट्रेट लिया, इसे आप हीट करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज तक लेके जाते हैं, 500 से 600, ताकि इसके ऊपर अगर कोई लुब्रिकेंट्स है, कोई इंप्योरिटीज हैं, तो उन्हें आप एवोपरेट कर सकें। अच्छा, इसके बाद ये क्या करते हैं कि आप इसको एक चैम्बर में लेके जाते हैं और वो चैम्बर, इस सबस्ट्रेट को आप लोड करते हैं, उसे आप ग्रोथ चैम्बर कहते हैं। ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम होता है। अल्ट्रा हाई वैक्यूम का मतलब है 10⁻⁹ to 10⁻11 टॉर इसमें प्रेशर होता है। यानी आपके जो जहाँ पे आप ये सबस्ट्रेट है और इसके नीचे आपके पास जिस मटेरियल की थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है, उसे आप एवोपरेट करते हैं। वो एवोपरेट होता है, वो फ्यूजन सेल्स के अंदर वो मटेरियल पड़े होते हैं, उसी वैक्यूम कंडीशन के अंदर आप उसे थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ थिन फिल्म है वो अनमैच्ड है। कोई और ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी की थिन फिल्म को कंपीट कर सके। इट्स वेरी वेरी प्योर सिंगल क्रिस्टल आप ग्रो कर सकते हैं और इसमें डिफेक्ट के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और दूसरा, इसमें कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि आप लेस देन 10 नैनोमीटर थिन फिल्म का भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, डूपिंग कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे आपको स्कीमेटिक दिखाई गई है कि यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट मटेरियल होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं, फ्यूजन सेल्स होते हैं, या फ्यूजन सेल एवोपरेट होकर यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और ये सारे का सारा ग्रोथ चैम्बर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन में होता है। और साथ साथ इंस्टीट्यू टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें आप साथ साथ देख रहे होते हैं कि क्या डिपॉजिट हो रहा है और कैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है। ये तीसरा मेथड था जो मैंने आपसे बात की है। इसके एडवांटेजेस में तो जाहिर है ये है कि हाई क्वालिटी, लो डिफेक्ट, हाईली यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सट्रीमली थिन फिल्म बहुत प्रिसाइजली और केयरफुली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व है और क्रिस्टल ग्रोथ रेट इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। फ्यू माइक्रोन थिन फिल्म डिपॉजिटेड इन आवर्स, एक घंटे में एक फ्यू माइक्रोन का मतलब है 0.2 0.3 इस माइक्रोन लेवल पे ये फिल्म ग्रो होती है। और इसके अलावा ये होती है कि इसका जो